ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਦ ਐਸੇ ਵਰ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਸੀ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਜਲੇ ਰਾਮ ਥਲੇ ਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਹੋਸੀ ਵੀ ਰਾਮ। ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਲੇ ਥਲੇ ਵਿਆਪਕ ਉਹ ਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਛਡਾਵੇ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਰ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹੋਲਕਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹ ਲਟਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਸਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਧਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਪਾ ਜੱਫੀ ਇਸ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਥੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਾੜਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। प्यारे बच्चों और सारी संगत जी, बाबा जी ने जो भी कहानी कही, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस कहानी में बाबा जी ने एक परमात्मा गुरु के शिष्य के बारे में बताया। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था। उसने काल से कई वरदान प्राप्त किए हुए थे कि जैसे मैं ना तो घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मुझे कोई इंसान मार सके, ना पशु मार सके, मैं किसी हथियार से भी नहीं मरूंगा। इतना सब कुछ मांगने के बाद में जो उसको प्राप्त हुआ तो उसको अहंकार हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं तो मर ही नहीं सकता, तो क्यों ना मैं लोगों से भगवान की तरह अपनी पूजा, अपना नाम जपवाना शुरू करूं। उसने अपने राज्य में सबसे कहलवाना शुरू कर दिया कि जले हरनाकश्यप थले हरनाकश्यप है भी हरनाकश्यप होसी भी हरनाकश्यप। लेकिन परमात्मा को अहंकारी लोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए उन्होंने हिरण्यकश्यप के घर में एक ऐसी आत्मा को भेजा जो परमात्मा में विश्वास रखती थी। उसका नाम प्रहलाद था। जब वह बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो रोज वहां हिरण्यकश्यप की प्रार्थना होती थी, जैसा नॉर्मल स्कूलों में प्रेयर होती वैसे। प्रहलाद ने कहा कि मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि जले राम थले राम है भी राम होसी भी राम, क्योंकि वो परमात्मा की आत्मा थी और उसको पूर्ण ज्ञान था इस चीज के बारे में कि हर जगह परमात्मा का ही निवास है, ना कि किसी इंसान का। उसके टीचर ने हिरण्यकश्यप के पास जाकर कहा कि आपका बेटा खुद बिगड़ा हुआ है और दूसरों लोगों, बच्चों को भी, लड़कों को भी बिगाड़ रहा है। ये सब इकट्ठा हो
सबको इकट्ठा करके कहता है कि कोई राम राम है जिसकी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप तो खुद एक दिन मर जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि सारी दुनिया मेरा नाम जप रही है और तू नाम क्यों नहीं जपता। बाबा जी ने हमेशा कहा कि भक्तों को कोई डर नहीं होता, वो उसको उनको कोई नहीं डरा सकता। इसलिए प्रहलाद ने बिना डरे कहा कि आप हर जगह मौजूद नहीं है, वे राम कोई और है। ऐसा सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं देखता हूं तुम्हारा रखवाला आकर तुम्हें आकर कैसे मुझसे छुड़वाता है। अगर वो परमात्मा है तो छुड़वाएगा, नहीं तो मैं देखता हूं कैसे होता है। उसने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका, मगर वह बच गया क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा था। परमात्मा ने उसकी रक्षा करी। हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में जल नहीं सकती। वह बहुत सारी लकड़ियों को आग लगाकर प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। मालिक की मौज, क्योंकि होलिका के पास एक कपड़ा था जिस पे आग का असर नहीं होता था। वो कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर गिर गया हो। इस तरीके से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने खंबा बनवाया जिससे आग से तपाकर बिल्कुल गर्म कर दिया, बहुत तेज उसको गर्म किया। उसने प्रहलाद से कहा कि अब मैं देखता हूं तेरा राम तुझे बचाता है या नहीं। उसने परमात्मा को याद किया और खंबे को पकड़ के गले लगा लिया। प्रहलाद बोला कि हे राम, वह है और मेरी रक्षा जरूर करेंगे। जैसे ही उसने उस खंबे को गले से लगाया, वो खंबा बिल्कुल ठंडा हो गया। तो उस समय परमात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, जिनका सिर तो शेर का था और पैर इंसान के थे, बाकी शरीर इंसान का था और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो शेर का था। उसने हिरण्यकश्यप को खींच के जो गेट होता है उस पे ले आया, ना तो अंदर था ना बाहर था, तो दरवाजे के बीच में रख लिया। उसको वरदान था कि किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। उसने नरसिंह तो था, शेर के जैसे पंजे थे, तो उसने उन पंजों से उसको मार डाला। और इस तरीके से उसके जो वरदान था उसकी भी शर्तें पूरी होगी, लेकिन उन्होंने उसको मारना था, प्रहलाद की रक्षा करनी थी। इस तरीके से उन्होंने प्रहलाद की रक्षा करके उसको मार डाला। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में हमें कभी किसी को बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें कहीं का नहीं छोड़ता, हमारा जो रिस्पेक्ट होती है उसको भी खत्म कर देता है। अहंकारी इंसान को लगता है कि मैं ही अच्छा हूं, बाकी को समझ नहीं है और वो सबको बुरा समझता है। इसलिए नम्रता और प्रेम से न केवल हम किसी भी इंसान को का बल्कि परमात्मा का दिल भी जीत सकते हैं। अगर हम सबसे प्यार करते हैं, घर में भी अगर हम सबसे प्यार करते हैं, आसपास भी अगर प्यार करते हैं, तो हमें सारे अच्छा कहते हैं। जिस तरीके से छोटे बच्चे जो बहुत ही सबसे मेल मुलाकात करते हैं उनको सारे प्यार करते हैं। अगर हम इंसानों का दिल जीत सकते हैं तो परमात्मा तो पहले ही बहुत खुश है और उनका दिल, परमात्मा को हम बहुत अपने ऊपर बहुत खुश कर सकते हैं। परमात्मा सबसे ऊपर है, सबसे महान है। इसीलिए मैं अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुनना और मानना चाहिए। सभी से नम्रता से व्यवहार करना चाहिए ताकि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जिस तरीके से बाबा जी ने कहा है। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि कहानियां एक माध्यम है जिनके जरिए गुरु अपने प्यारे बच्चों को, संगत को समझाना चाहते हैं। हम जीवों को भी चाहिए। आमतौर पे ये देखने में आता है कि हम भी छोटी छोटी बातों पे बहुत अपने आप को अच्छा समझते और दूसरों को अच्छा नहीं समझते। अहंकार होता है और अहंकार कहीं भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे हम सत्संग में है, सेवा में है, कहीं भी है। बड़ों को भी चाहिए हम सबको कि इससे बचना चाहिए। जो दिया हुआ, जो दया है वो बाबा जी की है। हम तो सिर्फ छोटे से जीव है जिन पे उन्होंने दया करके अपना एक रूप बनाया हुआ है। चाहे वो सत्संग के जरिए हमारा सुधार करना चाहते, संगत में मेल मुलाकात करके हम सबको इकट्ठे करते हैं। जो मौका हमें दिया बाबा जी ने उसको प्यार से रहना चाहिए, सेवा को सेवा समझ के करना चाहिए, सबसे मिलके चलना चाहिए। अगर कोई बुरा भी बोलता है तो उसकी नकल नहीं करके आप गुरु के शिष्य बने, दूसरे के लिए एक उदाहरण बने, ताकि आपकी अच्छाई को देख के एक दिन उसको भी शर्म आए और वो भी बुराई करना, अहंकार करना छोड़ दे। दुनियावी तौर पे भी अगर हम
अपने भी मस्त रहते हैं, अहंकार करते हैं, दूसरों से मेल मुलाकात नहीं रखते, वो इंसान एक दिन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। शुरू में तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन किसी जगह जाके उसके लिए वही उसका बेवकूफी, वो वही घमंड, वही अहंकार उसके लिए संताप बन जाता है, जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो किसी ना किसी भी रूप में अपना सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने किसी से मेल मुलाकात नहीं रखी, हमेशा अपनी चलाई है। और अपने चलाने वाला इंसान, अपने आप में होशियार इंसान, एक दिन थक जाता है, परेशान हो जाता है। उसको फिर समझ आती है जब वक्त बीत जाता है, उसके अपने छूट जाते हैं, वो किसी के साथ बैठने लायक नहीं रहता। हम चाहे अपने आप में कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर हम सबकी नज़र में अच्छे नहीं है, गुरु की नज़र में अच्छे नहीं है, संगत की नज़र में अच्छे नहीं है, संगत से हमारा मेल मुलाकात अच्छा नहीं है, अगर हम मिलके नहीं चलते हैं तो हम अच्छे नहीं। ये हमारी कमी है, ये हमारा अहंकार है, जो कि हमारी कमी भी हमें नहीं देखने देता। इसलिए हम सबको चाहिए, हम गुरु के बच्चे हैं, उन्होंने हमें मौका दिया, हमें चुना है, उन्होंने हमें नाम दिया, अपनी जोन में लाके संगत में बैठने का मौका दिया, और संगत में बैठ के भी सेवा करने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी दया है। छोटी छोटी बातों में अपना वक्त जाया ना करके जो मौका दिया उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एक तरफ हम सेवा करते हैं, बाबा जी ने हमेशा कहा है, दूसरी तरफ सेवा करके उसको अहंकार में यही मिट्टी पलीत कर लेते हैं। जहां भी हमें मौका मिलता है सेवा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अहंकार की वजह से हम अपनी सेवा को साथ ही साथ खत्म कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी वजह है, अगर हम लगातार सेवा करते हैं और अहंकार भी करते हैं तो एक दिन हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत सेवा कर ली, इससे हुआ तो कुछ नहीं। हमने ये कभी हिसाब नहीं लगाया कि जो हमने सेवा की वो साथ की साथ मिट्टी की है। अगर प्यार से गुरु की दया को समझ के सेवा करते तो वो सोना बनता। सबसे प्यार भी करते, सबसे मिलके भी रहते। इसलिए हम सबको बहुत जरूरी है, कहीं गलती होती है उसकी माफी मांग सकते हैं, और सामने वाले को भी चाहिए कि उसको माफ करे। बाबा जी ने हमेशा कहा है कि हम गुरु के बच्चे हैं, एक दिन हमने निज धाम जाके सबने इकट्ठे होना है, कर्मों के हिसाब से हम यहाँ इकट्ठे हुए। तो सबसे यही बेनती है, इस कहानी के माध्यम से ये एक संदेश बाबा जी ने देना चाहते हैं कि अहंकार में रह के अपना दिया हुआ वक्त खराब ना करें, उसका सदुपयोग करें, और हम जरूर कोशिश करें।